Welcome back, friends. So, last couple of days we have seen markets in the US rally. Um, I wouldn't say sharply, but they are rallying on the back of hopes and expectations that the Federal Reserve is probably done raising interest rates. So, there could be no more hikes in the interest rates that may come from here. Apparently, in the backdrop of such an expectation scenario, we found the bond yields coming down sharply. So we had the 10-year bond yield coming from 4.85 to 4.6%. And with that, naturally, the stock markets also rallied, not only in the United States, but across the world. We had a very important report on the US jobs that came out on Friday. September 3, and that showed that the jobs market seemed to be slowing down a little bit. The net addition to payrolls was 150,000 as compared to expectations of 170,000 plus. So in the backdrop of a slowing jobs market, one would therefore argue that the US Federal Reserve, it probably seeing that there are lagged effects of its rate hike campaign, and therefore they may now pause, or they may even completely take their pedestals of the rate hiking campaign that has been going on at such a furious pace over the last couple of years. This is something that the stock markets naturally like, and therefore you have the stock markets which rallied across the world. It was not a massive sharp rally, but it was there. I believe that as we go forward in this new forthcoming week, naturally the good effects of a weaker than expected jobs report in the United States is going to be helpful. But I believe there are fresh concerns that are going to start arising. One is of the US shutdown possibilities once again. And more importantly, if the labor market now is starting to get impacted, then there could be fresh concerns about a recession in the United States and elsewhere in the world. This, coupled with the fact that the geopolitical situation is not easing in any form. In fact, there are some fresh strikes at the Gaza Strip taking place, some in ambulances, and Israel is saying that Hamas was using them. All this does not add to a very, very useful situation, very productive very constructive from the stock market point of view, friends. So therefore, we may have now new concerns. As I have been mentioning over the last several months, that the bond yields will not be the only game in town. There could be fresh things, fresh concerns, and fresh headlines that can start coming to the fore. Now, there could be fresh concerns arising over the stronger possibilities of a recession and also of a hard landing. That will not augur very good for the stock market. So to get to know, and this will start appearing very soon now. So get to know where we are headed from here, please do join our premium value package. That's for the Indian markets. It gives you a week's prediction in advance. You can join Premium Plus, which gives you about 10-12 days predictions in advance, or simply the World Cup special package, which gives you daily predictions, and you can join that. It's a fantastic and a very moderately priced package as well. Number to get in touch, 9820861044 by your Beno. लास्ट हफ्ते में ऐसे अनुमान लोगों का शुरू हुआ कि अब अमेरिका का फेडरल रिजर्व अब जितना बढ़ा चुका, इंटरेस्ट रेट्स वो बढ़ा चुका और अब बढ़ने की क्षमता नहीं रखता. अमेरिका की भी जॉब्स रिपोर्ट जो आई शुक्रवार को, वो भी एक बहुत टिबिड रिपोर्ट थी. दिखा रही थी कि अब ज़्यादा रेट्स शायद बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जो जॉब्स के जो नंबर्स थे वो 1.5 लाख तक ही सीमित थे लास्ट मंथ में, अक्टूबर के महीने में. और एक्सपेक्टेशन था कि 1,75,000 से ज़्यादा जॉब्स ऐड होंगी, जो ना हुआ. तो ऐसे कमज़ोर इकोनॉमिक परिस्थिति में ये स्वाभाविक है कि समझना कि अभी फेडरल रिज़र्व जितना बढ़ा चुका था इंटरेस्ट, वो बढ़ा चुका और अब शायद न बढ़ाएगा, इनफैक्ट घटाने की क्षमता रखता है. तो ये सब तो अच्छा है. स्टॉक मार्केट को हमेशा पसंद है जब ब्याज दर कम होते हैं, क्योंकि जब आप वो कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हैं करंट में, तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है अगर ब्याज रेट कम हो रहे हैं तो.
लेकिन ये और एक संदेह दे रही है कि मंदी का दौर भी आ रहा है, रिसेशन या मंदी जिसे कहते हैं वो बढ़ेगा और एक सॉफ्ट लैंडिंग जो एक्सपेक्टेशन है विश्व में वो शायद न आए। ये जो हेडलाइंस है, न्यू हेडलाइंस अब अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी बहुत जल्द और इनका फिर इम्पैक्ट विश्व बाजारों पे आएगा। तो ये जानने के लिए डिटेल में किस हद तक मंदी का दौर आ सकता है और कहाँ से शुरू हो सकता है, तो ये ज़रूर ज्वाइन करें। हमारे अमेरिका के लिए डेडिकेटेड पैकेजेस हैं प्राइम प्लस, और भारत के लिए हमारे बहुत खूबसूरत वर्ल्ड कप स्पेशल जो डेली प्रेडिक्शन देता है, बहुत मॉडरेटली प्राइस्ड है। या तो फिर आप प्रीमियम वैल्यू ज्वाइन करें जो पूरे हफ्ते का एडवांस में देता है। प्रीमियम प्लस आपको 8-10 दिन एडवांस में 12 दिन भी दे देता है। तो ये इनमें से जो भी पैकेज आपको अच्छा लगता है, प्रीमियम वैल्यू बहुत खूबसूरत है, 1 वीक का अच्छा प्रेडिक्शन मिल जाता है। तो ये लेके आप ज्वाइन करके और स्वाभाविक बनिए। मार्केट्स कहाँ से चल रहा है, एक साइंटिफिक बेसिस पे आगे बढ़ेंगे तो लॉस होने का क्षमता बहुत कम रहती है और प्रॉफिट बहुत अच्छे रहते हैं। और तीसरी बात है, आप आराम से उठते हैं तो देखते हैं कि अब मार्केट का ये जो उत्सुकता होती है, रात को डाउ ऐसे रहा, सुबह यहाँ पे ऐसे होगा, भारत में ये अलग रहेगा, ये सारी जो चिंताएं हैं वो दूर हो जाएंगी। आपको आराम से एक हफ्ते का पूरा प्रेडिक्शन साइंटिफिकली बना के दे देंगे। ना भूलें कि हमारे जो वीडियोस हैं वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही हैं और ये हमारी मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बांटना, ठीक है, जो हमारी थिंकिंग है वो बांटना है। हम ये आपको बाय या सेल या पुट या कॉल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारे हिसाब से क्या भारत में, विश्व में, अमेरिका में किस तरह से मार्केट के बढ़ने या घटने की संभावना रखते हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हैं और समझाते भी हैं भाई क्यों ऐसे हमें लग रहा है, ठीक है। तो ये सब देखते हुए आपको समझाया जा रहा है कि हमारे मन में क्या बातें आ रही हैं, हम क्यों आपको कह रहे हैं, हम क्या जो इंडिकेटर्स हैं वो देख के आपको बता रहे हैं। एजुकेशन हमारा मेन पर्पस रहा है वीडियोस का और हमेशा ही रहेगा, ठीक है। टाइम टू टाइम हम वेबिनार्स भी रखते हैं, वो भी आप ज्वाइन करके सौभाग्य, लेकिन ज़रूर सोचिए एजुकेशन इंटेंट मेन पर्पस से चल रहे। लेकिन अब एक न्यू हेडलाइंस आने की संभावना है। ये हेडलाइंस होंगे कि अब विश्व में मंदी का दौर कब आ सकता है, कहाँ पे जीडीपी अभी गिरेगा और कहाँ से ये सब जो है फाइनली जाके मंदी के दौर भी आएंगे, जिसके बेसिस पे फिर अमेरिका का फेडरल रिजर्व जाके ब्याज दर घटाएगा। तो ये सब अगर आपको पहले बताया जाए तो कितनी अच्छी आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होगी, कितना अच्छा आप ट्रेडिंग कर पाओगे। ज़रूर ज्वाइन करिए प्रीमियम प्लस आज ही। संपर्क करने का नंबर 9820861044। नमस्ते। आज का दिन आप लोगों के लिए खुशहाल रहे, ईश्वर से प्रार्थना करके यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते।